So today we are going to celebrate Hostel Day in remembrance of Saint Teresa, जिनके नाम पर हमारे BSS हॉस्टल का नाम पुष्पा गर्ल्स हॉस्टल या सेंट टेरेसा गर्ल्स हॉस्टल रखा गया है. And we take a privilege to welcome all of you to celebrate with us a day in our hostel life and to celebrate Hostel Day of Pushpa Girls Hostel. Present here on our Hostel Day celebration. Saint Teresa says, I understand that every flower created by God is beautiful, that the brilliance of the rose and the whiteness of the lily do not lessen the perfume of the violet or the sweet simplicity of the daisy. I understood that if all the lovely flowers wish to be roses, nature would no longer be enameled with lovely hues. And so it is in the world of souls, our Lord's living garden. Yes, dear students and well-wishers, you are the flowers created by God to be lovely flowers in the garden of God. On this special day, I take extreme pleasure to welcome each one of you present here. It's an honor to welcome our distinguished chief guest, Reverend Father Thomas Peringalur, SVD Rector of KPRP. On this auspicious occasion, we are privileged to have you with us, dear Father. Your presence had added remarkable value to our gathering. A very special welcome to our respected Dr. Father John P.J., the principal of BSS College, who is the backbone in giving, motivating and supporting us in all the way with full enthusiasm. I take pleasure in welcoming dear Father John P.J. We are also glad to have with us the Vice Principal, Sister Sonia, Father Jomi Panitas, Dean of Study, and Father Tommy, the Parish Priest of the Holy Family Church. Yes, dear Father and sisters, your presence has graced this occasion. It gives me immense pleasure to extend a hearty welcome to our neighboring community sisters and fathers. Dear sisters and fathers, your presence has doubled our joy. I also take this opportunity to welcome our staff members of BSS College, our community members, and hostel staff. Last but not the least, with immense pleasure and joy, I welcome all of you dear students for this Pushpa Girls Hostel Day. Dear students, it's your day, so enjoy the day to its full. Once again, I welcome each and every one of you gathered here and thank you for making the effort to be here. Your presence has added joy to our celebration. Hope you will enjoy the event. Thank you. Thank you so much, Sister Vijay, for such a warm welcome. प्रेरणा, तुम्हें पता जब मैं नई हॉस्टल में आई थी तब मेरा एक इंटरव्यू था and at that time Sister Vijay told me that any event of your life, may it be a small event or a
massive change in your life, never ever forget to thank your Lord. तो स्वर्णा, आज के दिन तो भगवान को याद करना और उन्हें शुक्रिया करना सबसे ज़्यादा बनता है। बिल्कुल प्रेरणा, और मेरी नज़र में भगवान को शुक्रिया करने का प्रेयर डांस से बेहतर कोई दूसरा तरीका तो नहीं है। ज़रूर। तो इसके लिए ना मेरी नज़र में हमारे हॉस्टल की कुछ बहुत खूबसूरत डांसर्स हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएँ और हम सब की तरफ से आज के इस इवेंट के लिए, आज के इस दिन के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करें। So let us give a big round of applause for Ashreya and group. What a graceful performance indeed. Please तालियों के साथ कंजूसी ना दिखाइए. Let's keep it going for Ashreya and her crew. Now, इतना graceful dance देखने बाद I'm pretty sure everyone here is very excited. So I would like to take this opportunity to invite Father Thomas Perengalur to inspire the audience with some uplifting remarks.
Father, please. Dear Reverend Father Johnny, Sister Viji, fathers, sisters, invited guests and the inmates of Pushpa Hostel. It gives me great joy to be in the presence of all of you. As you know, coming to the BSS campus always is a happy occasion, happy experience. I would have been happy to speak a few words after having seen some of the performances of our inmates here. It is too early for me to congratulate all of you because I know what comes out of this campus is always something standard programs. Anyway, I will reserve that one for another occasion now. At the moment, when I am in front of you in this beautiful auditorium, I am reminded of an African philosophy. You might have heard that name many times early. The African philosophy that is called the philosophy of Ubuntu. Some of you might have surely heard this one. The principle of Ubuntu. Ubuntu means a philosophy of humanism or humanness. Something beautiful. The philosophy of humanness or principle of Ubuntu, it simply says, I am because we are. I am because we are. It began with a little story in Africa, in one of the kingdoms there in Ghana. One of the kings gave a beautiful banquet. A beautiful banquet for the VIPs of his country, the nobles. They all came around for a beautiful meal in the evening, and the king quietly asked the servants to serve each one of them with a bowl of soup. A bowl of soup, and then put a spoon close to it, a long spoon. See, if you have a long spoon, it's interesting to drink or eat with a long spoon. When the spoon, when you are taking, if it is close to the spoon, then the handle of the spoon will touch somebody, the neighbor. And if you take at the tip of the handle and if you try to drink, a few drops will spill. And so the king is waiting to see how they are going to drink it. And then what happened? For some time, all the people were waiting, and then from one corner, one of the guests took the spoon, took a spoonful of soup, and fed the neighbor. Seeing this, everyone began to imitate that particular person. That is, I am because we are. You have heard this story. A story, it continues. There is another version of it, like the children in Africa, they were about a dozen of them standing together, and then a white man comes there. A white man, of course, they have got that imperialistic mentality, the white people always, especially in Africa where there is the apartheid policy, the slavery. And then this white man saw these dozen children standing there, and then he called them together and he said, you see that tree there, 50 meters about here, the one who reaches first, I will give a packet of chocolate. So the little children got ready for running, and then the man said, get ready, get set, 1, 2, 3, and everybody ran. But after some time, the little children held the hands of each other. They reached together at the finishing point. Everybody got the chocolate. I am because we are. I said this one only because I have one important message to convey. You will have a lot of programs here. There will be the chosen ones who will come and perform. Maybe the future, we can say when the great film actresses, or a lot of them will be here, but in the future.
But I know also there are a number of you who would not get a chance to come over here and perform. But they will be there at the background. What you perform surely will have a hand from all those people who never got a chance. And in the BSS college, when you come, you improve, you simply increase in your wisdom. You become more academical. But in the hostel, which is your second home, you see to each other, you build each other, you grow together. And that is why we say, if you really love each other, you will not hesitate to take the lowest place. And that's my message for you. The principle of Ubuntu, I am, because we are. We need to go together. We need to support each other. We need to accompany each other. Have a good evening. Thank you very much. Thank you, Father, for your inspiring words. I believe the audience will embrace your wisdom and incorporate all of this into their lives. I feel like इस audience को वापस track पे लाने के लिए we need some sort of a folk dance with some Bollywood तड़का. So please welcome with a round of applause Udita Tirki and her dance crew.
தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட் जिंदगी बिता दो पल ये जो जाने वाला है। पता है स्वर्णा, मुझे ना ओल्ड मेलोडीज बहुत पसंद है, कितनी प्यारी होती है। मगर इससे पहले मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे ओल्ड मेलोडीज में इंटरेस्ट हो। मगर यहाँ आके मुझे ऐसे कई लोग मिले जिन्हें ओल्ड मेलोडीज में ही नहीं बट आर्ट, एंटिक्स, हिस्ट्री ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मेरा भी जो इंटरेस्ट है ना इनमें बहुत बढ़ गया है। तुम्हें भी तो कितना पसंद है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वेट कर रही थी कि मेरा नाम भी लिया जाएगा, आखिर मैंने ही तो सिखाया तुम्हें। बहरहाल अगर तुमने ऐसे ही गाना गाया ना तो मेरा इंटरेस्ट मर जाएगा। ओफो स्वर्णा, चलो ठीक है, मुझे एक ऐसी लड़की पता है जो बहुत प्यारा गाती है, तो उससे कुछ ओल्ड मेलोडीज गवाए। हाँ, तुम्हारे
हमारे गाने को सुनने के बाद थेरेपी लेने से तो अच्छा यही है कि उसे बुलाया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनुष्का शांडिल्य का। चंचल हवा। व्हाट अ वॉइस यार, मेरी नहीं अनुष्का शांडिल्य की। प्लीज गिव इट अप फॉर हर। अब जैसे कि आप लोग ने देखा
हम लोग ने डांसिंग देख ली, सिंगिंग भी देख ली, तो अब क्या बाकी है? एक्टिंग, स्किट। अब ये तो सोच ही रहे होंगे कि हॉस्टल डे में स्किट किस चीज का होगा। ऑब्वियसली हॉस्टल से रिलेटेड ही होगा गाइस, पुष्पा गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। सो प्लीज वेलकम आवर डियर सिस्टर्स विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। सारा बेटा, तुम कॉलेज से आ गई? हाँ माँ, मैं आ गई। ठीक है बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ, कुछ खा लेना। हाँ माँ। सारा बेटा आ जाओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाई हूँ। क्या बनाए हैं मम्मी? आकर देखो तो सही। अभी आई। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कुछ खा लो। आ रही हूँ मम्मी। कब से देख रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ मम्मी बोलती है। देखती हूँ तो क्या करती है लड़की। सारा देखो तो भला, मोबाइल पर व्यस्त है। कब से मैं बुलाए जा रही हूँ, आ जाओ बेटा, कुछ खा लो। चलो मोबाइल को छोड़ो, अभी कुछ खा लेना बेटा। चलो तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाई हूँ। मम्मी ये क्या है? तुम्हारा स्पेशल, खा कर तो देखो। मोबाइल को साइड में रखो बेटा और जल्दी जल्दी खाओ। जब देखो फोन ही पर लगी रहती है। तुम अपना कुछ काम भी तो कर लेती, कम से कम अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान देती। जब तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तब तो जीवन में कुछ बनोगी। डोंट वरी मॉम, मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। देखिएगा माँ, मैं जरूर एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर आऊंगी। क्या कहा? पुलिस ऑफिसर? हाँ माँ, पर क्यों? मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती क्या? तुम जरूर बन सकती है बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं देखती हूँ दिन भर फोन ही में लगी रहती है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी खा लिया ना? ठीक है, अभी तू जा, थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी। हेलो, हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी बर्थडे पार्टी के लिए। मैं पहुंच जाऊंगी। अरे यार रुको ना, थोड़ा देर वेट कर लो। हाँ, मैं मम्मी को मना लूंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अरे डोंट वरी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटा? दिन भर मम्मी मम्मी बोलती ही रहती है। आई? मम्मी, आज मोनी का बर्थडे है, क्या मैं जा सकती हूँ? अगर मैं ना जाऊँ तो नाराज हो जाएगी। तुम्हारा बस यही काम रह गया है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी मनाना, मोबाइल देखना। कम से कम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो बेटा। क्या यार मम्मी, सारे दोस्त आ रहे हैं और मैं अकेले ना जाऊं? अच्छा लगेगा क्या? मम्मी आप हमेशा मना कर देती हैं, सिर्फ इस बार जाने दो ना। ठीक है, बस इसी बार। ठीक है, अपना ख्याल रखना और समय पर वापस आना, ठीक है बेटा? हाँ मम्मी, हाँ, मैं समय पर वापस आ जाऊंगी। थोड़ा सा घर साफ कर लेती हूँ। देखो तो सारा अपना कमरा कैसे बना कर रखी है। ये लड़की भी ना
जब देखो तब मोबाइल पर व्यस्त रहती है। कम से कम अपने सामान सबको तो ढंग से रख लिया करती। अपने पुस्तक कहाँ पड़ा हुआ है? अपने कपड़े सबको भी सही से रखना चाहिए ना। पता नहीं, अभी कॉलेज जाना शुरू कर दी, लेकिन कब सुधरेगी? इसको समझाते समझाते मैं थक गई हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम वापस आ गई? सारा बेटा, तुम वापस आ गई बेटा? कुछ नहीं बोल रही है, क्या हो गया? जाकर देखती हूँ। सारा बेटा, तुम वापस आ गई? क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही है? कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं बोलती है और मुंह लटका के बैठी है। मम्मी, आज मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे बात नहीं करूंगी। हाँ, लड़ाई हो गया? अरे तुम बर्थडे पार्टी मनाने गई थी कि झगड़ा लड़ने गई थी? बताओ। वही शुरू की ना। इतनी सी बात तो कोई बात नहीं। ऐसी छोटी छोटी परेशानियों में तुम ऐसे नाराज हो जाओगी, रोना शुरू कर देगी, तो अपने जीवन में तुम कैसे आगे बढ़ोगी? मम्मी, मुझे उसने डांस करने नहीं दी ना। ओह बेटा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जिंदगी में तो बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं और तुम्हारे जीवन में भी आ सकते हैं। हमें जीवन में हिम्मत से जीने सीखना है और जो हमारे लिए बुरा करते हैं उन्हें माफ करना चाहिए। सभी से प्यार से रहना और दूसरों को मदद करना चाहिए। यही तो बालक यीशु की संत तेरेसा सिखाती है। क्या तुम उसके बारे में जानती हो? सुना सुना तो लगता है मम्मी, बट आई एम नॉट श्योर। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताती हूँ। छोटी तेरेसा का जन्म फ्रांस देश में सन 1873 ईस्वी में लुई मार्टिन और सेलिन मार्टिन से हुई थी। उनके कुल 9 बच्चे थे। 9 बच्चे? हाँ, उनमें से 4 पुत्रियों की जन्म के साथ ही मृत्यु हो गई और 5 बेटियां बची। उनमें से सबसे छोटी थी तेरेसा। सबसे छोटी? हाँ, वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु बीमार और कमजोर भी थी। उनके माता पिता को लगा कि उनकी भी अन्य पुत्रियों की तरह मृत्यु हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ मम्मी? जब वह सिर्फ 5 वर्ष की थी, उनकी मां की मृत्यु हो गई। यह घड़ी उसके लिए अत्यंत ही दुखद था। मां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे बड़ी बहन पॉलिन मां की तरह उसका देखभाल की और उसे मां का प्यार दिया। कुछ साल बाद बड़ी बहन उसको छोड़कर ईश्वर की सेवा में एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए कार्मेल मठ में प्रवेश की। यह देखकर छोटी तेरेसा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह पॉलिन से बहुत प्यार करती थी। यह दुख उसके लिए चुनौती थी और उन्होंने लोगों पर भरोसा करने की अपेक्षा ईश्वर पर भरोसा करना बेहतर समझा। जब वह 15 वर्ष की थी, वह स्वयं अपनी बहनों की तरह एक धर्म बहन बनना चाहती थी। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने और एक धर्म संगीय जीवन जीने की इच्छा अपने पिता के पास जाहिर की।
कुछ नहीं बेटा, आज का पेपर पढ़ रहा हूँ। आजा, तू भी बैठ। पापा सुनिए ना, आपसे मुझे कुछ कहना था, बोलूं क्या? हाँ मेरी प्यारी रानी, क्यों नहीं। वो ना, मुझे दीदी की तरह सिस्टर बनना है और सिस्टर बनकर ईश्वर के लिए खोई आत्माओं को बचाना चाहती हूँ। पर बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। पापा मान जाओ ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। ठीक है, यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो तुम मठ में प्रवेश कर सकती हो। संत तेरेसा रोम जाकर संत पापा लियो 13वें से अनुमति मांगती है। कम उम्र होने के कारण उसे अनुमति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि दोबारा रोम जाकर संत पापा से पुनः अपनी इच्छा जाहिर की। संत पापा उनकी दृढ़ इच्छा देखकर उसे कार्मेल मठ में प्रवेश करने की अनुमति दी। संत पापा से अनुमति पाने के तत्पश्चात छोटी तेरेसा के पिताजी उसे कार्मेल मठ पहुंचाते हैं और सभी धन बहनें उनका सहृदय स्वागत करती हैं। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। आप किससे मिलने आए हैं? मैं लुई मार्टिन और ये मेरी छोटी बेटी तेरेसा है। ये भी अपनी बहनों की तरह एक धर्म संघीय जीवन जीना चाहती है, इसलिए मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूँ। अच्छा ठीक है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेटी को हमारे कॉन्वेंट में लाने के लिए। वेलकम। उसके बाद वे तेरेसा की बुलाहटिए जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। कार्मेल मठ में प्रवेश करने के कुछ सालों बाद वह व्रत धारण की और अपना सामुदायिक जीवन साधारण सा जिया। वह कहती थी, मेरी बुलाहट प्रेम है। तेरेसा हर छोटे छोटे कार्यों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से दूसरों की आत्माओं को बचाने के लिए करती थी। धर्म ग्रंथ के कुछ अंशों ने तेरेसा पर गहरी छाप छोड़ी, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 3। यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। और दूसरा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 3। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इन शब्दों ने तेरेसा को एक बच्चे की तरह छोटा बने रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो।
सिस्टर, आप कब से कपड़ा साफ कर रहे हैं? देखिए, आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं बेटी, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, दीजिए, मैं कर देती हूँ। सब कोई उसको मदद करते हैं, मेरे को कोई मदद नहीं करते हैं। सिस्टर, लीजिए, कपड़ों की सफाई हो गई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर, आप कहाँ जा रही है? मुझे चापल जाना है। चलिए, मैं आपको पहुँचा देती हूँ। थैंक यू। अरे सिस्टर, मेरी को दवाई देने का टाइम हो गया है। सिस्टर मेरी, क्या आप दवाई ले ली? नहीं, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं दवाई लेना तो भूल ही गई थी। सिस्टर तेरेस, आपका तबीयत तो ठीक है ना? आप बार बार क्यों खांस रही हैं? मेरा तबीयत ठीक है सिस्टर, लीजिए आपका दवाई। सिस्टर, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। सिस्टर तेरेस, मेरा सुबह वाला दवाई अरेंज करके जाइएगा। जी सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर तेरेस। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर तेरेसा हर कार्यों को करते समय ईश्वर को समर्पित करते हुए उनसे बातें करती थी और बहुत सारी आत्माओं की मुक्ति एवं पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करती थी। तेरेस, सिस्टर तेरेस। जी सिस्टर। कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। ये सिस्टर मेरी का कपड़ा है, इसको उसका रूम में रख देना। जी सिस्टर। तेरेसा जानती थी कि वह जीवन में बड़े काम नहीं कर सकती और इसीलिए वह मठ के अंदर रहते हुए हर कार्यों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से की। वह छोटे छोटे कार्यों एवं प्रयासों से ही आजीवन न केवल किसी धर्म विशेष के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करती रही और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से लोग अपने गलत रास्तों और गलत आदतों को छोड़कर सही राहों पर लौट आए। संत तेरेसा अपना संपूर्ण जीवन मठ के अंदर रहते हुए इन छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे कार्यों एवं प्रार्थनाओं को करते हुए मानव जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। तेरेसा के जीवन में दो मुख्य स्तंभ रहे हैं, ईश्वर से प्रेम करना और मानव जाति के उद्धार के लिए कुछ करना। बेचारी सिस्टर तेरेसा कितना दुख सहती है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करती। मुझे देखकर बहुत दुख होता है। सिस्टर एग्नेस, सिस्टर मेरी, इधर आ जाइए, जल्दी आइए। जी सिस्टर। सिस्टर, क्या हुआ? तेरेसा टीबी की बीमारी
से ग्रसित थी, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। वह अपने जीवन में आने वाले दुख दर्द को खुशी से स्वीकार किया। बीमारी के कारण उसे कई दुखों, कठिनाइयों एवं कमजोरियों का सामना करना पड़ा और 24 वर्ष की कम उम्र में ही 30 सितंबर 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और 17 मई 1925 में संत पिता पियुस 11वें ने उसे संत घोषित किया। तो बेटा सारा, तुम्हें तेरेसा का जीवनी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मम्मी। मम्मी, उनका जीवन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तो बहुत ही त्यागमय और समर्पित जीवन जिया है। उन्होंने एक सादगी जीवन जीते हुए दूसरों की सेवा की। बड़े और छोटे कार्य में कोई फर्क नहीं समझा, बल्कि हर एक कार्य को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से की, जिससे बहुत सी आत्माओं को मुक्ति मिले और पापियों का मन फिराव हो। संत तेरेसा आज मुझे यही सिखाती हैं कि मुझे किसी भी बड़े कार्य के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि दिनचर्या के कार्यों को ही बड़े ही प्रेम और समर्पित भावना से करना है तथा एक दूसरे को माफ करके प्यार से रहना, कठिन परिश्रम करना और अपने जीवन में आने वाले हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना साहस से करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिखाती हैं। मम्मी, मैं तो यही सब कुछ आपके बताए हुए कहानी द्वारा सीखी हूँ। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम कितनी भोली है। ईश्वर की आशीष हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करे। यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू मम्मी।
मेरी बुलाहट प्रेम है, कहती सेंट टेरेसा के बारे में आज हमने जाना और उनके बारे में देखा भी। बहुत प्यारा स्किट था। थैंक यू सिस्टर्स फॉर परफॉर्मिंग सच अ ब्यूटीफुल स्किट फॉर अस। प्रेरणा, मुझे ना अचानक से अहमद फराज साहब की एक नज़्म याद आ गई। अहमद फराज साहब की? जरूर सुना, हम सब सुनना पसंद करेंगे। पक्का सुनेंगे सारे? ठीक है। भले दिनों की बात है, भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा से रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। कोई भी रुत हो उसके छप, फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। वाह 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 वाह, क्या नज़्म सुनाई है सुवर्णा तुमने, बहुत प्यारी नज़्म थी। मगर तुम्हें ये नज़्म सूझी क्यों? अभी ना मैं इटिनरी देख रही थी, तो मुझे उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा परफॉर्मेंस आने वाला है अभी। अगला परफॉर्मेंस? बिल्कुल। किसका परफॉर्मेंस है ये इतना प्यारा, जिसके लिए तुमने इतनी प्यारी नज़्म उन्हें डेडिकेट की है? भाई अगर अब मैं बता दूंगी तो मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा ना, तो एक काम करते हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं और देख लेते हैं कि मैंने उन्हें ये नज़्म क्यों डेडिकेट करी है। क्या कहते हो आप सब लोग? बुला लें? तो फिर तालियां बजाइए नैना बुंदेला के लिए। No
guys, but performances को थोड़ा wait करना पड़ेगा because I would like to invite our principal, Father John, to come on the stage and bless our audience with some encouraging words. Father Thomas, Billalu, our guest, all the other guests of the day, my dear students, hostelers. We had a guest for about a week, and at the end of her stay, she commented or said that this BSSS campus is a living campus. There's life throughout day and night. It's all because of the presence of this hostel, Pushpa Hostel, here in the campus. There are students going in and out for their coaching, shopping, and other business activities. Their parents, guardians coming in, going out all the time, even at nights when they are sick. And so it makes all, a living campus. So it's a blessing. I believe it as a blessing from God to have got this hostel in our campus. We did have problems at times, early years, but then of late I found our girls here are well disciplined. We don't have much to care for because they take care of themselves. And much more they take, as Father said, not I but we. They take care of each other, which makes, I think, this community and this hostel something unique and special. We did have number of hostel days, but then Corona gave a halt. We did not have for the past 3 to 4 years, probably hostel day. We encouraged the hostel day because not for a performance alone, but also wanted their parents to be a part of this celebration, which couldn't be possible because it's a working day, and also the students who are staying in our hostel are from far and wide outside Bhopal. Anyhow, as Father said, this little celebration, the practice that they have done, the planning that they went through, will all bring groups together, community together, and the whole hostel, I believe, in one platform. Thank you so much to Sister Warden, Sister Viji, and of course her assistant, Sister Vimla, for taking so much of pain to get this day ready. I'm sure it's a unique day, and it will mark in the history and on pages of Pushpa Hostel in the days to come. And at the same time, I would like also to congratulate all the performers, supporters, people who are behind the curtain. Number of them, you must have seen even setting up the stage itself is an encouraging work. And that is actually the team spirit with which we need to work and live. Congratulations to all the performers. I think we have got a good number of sisters in our hostel, almost 21 if I'm not mistaken. Right, sister? 21. And they also got a platform to perform, to present whatever little skit or dance that they had. Thank you, fathers, sisters, for coming over here today. Though it was a short invitation, it was in a very short time. I just called up to some of you only yesterday because we were also wavering about the date for this celebration because of very many other programs fixed already.
Anyhow, all of you have made it possible to come over, and some of our well-wishers, we have people who support us day in and day out throughout the year. Very many of them are present here today with us. We are highly obliged and grateful to all of them, especially people, you know, who cook for these girls, and also for other monetary supports. You know, the hostel doesn't just run with members alone, but it needs a strong supportive system which keeps the hostel running, and for which we have number of hands who put together all their efforts to make this hostel running smooth. Once again, thank you, and a special word of appreciation to Sister Viji, because I did not even come for a practice. They were asking me whether the skit is over or not. I said, I also am waiting to see when it is over. Because I myself did not have seen it, but then Sister Viji took complete control of the entire program. And when she said it is just for 1 hour and a half, I said it's okay. It can go even without other supervision. Because guests are come at least to watch and enjoy for some time or year. Thank you so much, and God bless. Thank you, Father, for your positive and encouraging words. Now, अब इतनी देसी vibes तो हो गई है, guys. I'm kind of thirsty for something, Videshi vibes type का. What about you guys? Yes. Guys, louder यार, thirst ऐसा थोड़ी होता है. What about you guys? Yes. So please welcome Anushka Tirki to quench this thirst of ours when she will be singing You and Me by Jennie from Blackpink.
Wow, 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 what an धमाकेदार performance it was, and I really love her rap. आप लोगों को मजा आया? तो सर ना, हम कितनी सारी चीजें साथ में करते हैं ना, खाने से लेके पढ़ने तक, बाहर जाने से लेके साफ सफाई करने तक। इवन तो रूममेट्स नहीं है, बट हम एक साथ कितना एंजॉय करते हैं। मस्ती, शरारत, पढ़ना, घूमना, कितनी सारी चीजें। हाँ प्रेरणा, और तुम्हारी इन बातों से मुझे हमारी ही तरह का एक और डुओ याद आ गया, जो लड़ता भी हमारी तरह है, झगड़ता भी हमारी तरह है, खुद तो शरारत करता है, पूरे हॉस्टल को उसमें इन्वॉल्व भी कर लेता है। अच्छा, वैसे ये है कौन भला? आप भी जानना चाहेंगे कौन है? तो आपको पता है उन्होंने एक परफॉर्मेंस लिया है, वो भी डुओ में लिया है। तो बुला ले? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। यार ये लोग ताली तो बजाते नहीं है, तो अरे बुला लो यार, इन्होंने तो तालियां भी बजा दी है, बुला लो। तो फिर थोड़ी सी हूटिंग के साथ बुलाइए अनुष्का एंड राधिका को। Put your body on the ceiling, you don't need a reason, come and tell us how to feel.
पंजाबी डांस देखने के बाद ना मेरा मन कर रहा है थोड़ा और देख लूं। What do you guys say? पंजाबी डांस? पक्का? इसे मेरे दिल की गल कह दी थी भाई। So let's welcome मानसी गुलाटी। ओए हौली हौली गिद्दे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कच्च दा समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे। नचदी बीड़ी विच पाई लाल भंग बड़ी जचदी। ओए रुक के दा मुंडा विच मारदा ए गेड़ियां देखदे मोरनी अज किने बचदी। ओए सदुआ को पुतरी नू रख साव के सदुआ को पुतरी नू रख साव के ओ किते हाथ जो पड़कना जावे। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे हॉस्टल में बहुत सारे टैलेंट्स हैं? एंड वो सब लोगों ने हिडन रखे हुए थे आज तक? लगता तो वैसा ही है। भाई हमारी पंजाबी कुड़ी ने तो पंजाबी वाइब सेट कर दिया हमारे स्टेज पर। क्या कहते हो प्रेरणा? बहुत। थैंक यू मानसी गुलाटी फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। हॉस्टल वो जगह जहाँ पर हम आते तो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह हैं। यार मम्मा मुझे ये नहीं खाना है, मुझे बैगन पसंद नहीं है,
क्या आप रोज रोज करेला बना देते हो? मैं नहीं धोने वाली अपने कपड़े, आप किसी और से धुलवा लो। From here to learning each and everything, not just about the household works, but adjusting with new people, learning new things, learning our own capabilities and being happy around new people. हम कितना लंबा सफ़र तय करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने ट्रेडिशंस, कितने कल्चर सीखते हैं। इस एक छोटी सी दुनिया में हमारी कितनी खूबसूरत यादें बन जाती हैं। क्योंकि बिल्कुल स्वर्णा, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही नहीं बट सारी चीज़ों को एंजॉय करना भी सीखते हैं, अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज़ पर भरोसा करना सीखते हैं। पता है स्वर्णा, तुम्हारे इन्हीं सारी बातों से ना मुझे अपने हॉस्टल का एक बहुत पुराना और मस्त मौला ग्रुप याद आ गया। तो क्या कहती हो, उन्हें बुलाया जाए? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एनएसएन ग्रुप का, जो कि आग लगाने वाले हैं अब स्टेज पर। एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें छुपा के, शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है।
its end. With these heavy words and our heavy hearts, this evening and this event has to come to its end. हमें उम्मीद है कि आज की शाम आपने हमारे साथ उतनी ही एंजॉय की होगी जितनी कि हम लोगों ने आपके साथ एंजॉय की। Hope you enjoyed a day of our hostel. हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ से ढेर सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज लेके जाए। अब हम एंकर्स लेते हैं आप सभी से विदा और मंच सौंपते हैं श्रुति ठाकुर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Good evening, everyone. I stand before you today with a heart full of gratitude as we came to an end of the Hostel Day celebration. It's been a day filled with joy, laughter, and unforgettable memories. First and foremost, a big thank you to our respected chief guest, Father Thomas Paringalur, Father John PJ, Father Johnny, Father Tommy, Sister Sonia, and other community sisters, and our community sister, Sister Loot, Sister Chinama, and other guests who gave us the opportunity to showcase our talent in front of us all. A very special thanks to Sister Viji and Sister Bimla for their motivation and constant support in transforming our performances. With their hard work, creativity, and attention to detail, they, with their countless hours invested to make this day a memorable one. I would also like to express my gratitude to our talented performers who showcased their talents and entertained us all. Their performance added a special charm to the event, as we are fortunate to have such incredible talent within our hostel community. A warm thank you to hostel mates who worked tirelessly behind the scene to ensure everything ran smoothly. Your efforts did not go unnoticed, and your commitment to creating a positive environment is truly commendable. I want to express appreciation to college staff, hostel staff, and their families, who contributed in various ways to make this day truly special. Your enthusiasm and spirit made our hostel day a celebration to remember. To our esteemed guests, thank you for being a part of this occasion. Your presence elevated the energy of the event. We are honored to have you with us. As we wrap up this Hostel Day celebration, let us carry the camaraderie and positive energy forward. May the bond strengthen today to grow, and may the memories created linger in our heart forever. Once again, thank you everyone who contributed in any form to make this Hostel Day 2024 a great success. Wishing you all a continued joy and success in the days ahead. Thank you.